In this particular video, we will discuss about the another part of recursion. So we have discussed about recursion. We have discussed the basics of recursion. We have also discussed some implementations based on recursion. We all have discussed this all. But we have some other, we can say more complex implementations of recursion, how recursion can be implemented. Let's see this thing, how this particular thing can be done. So, recursion. In this particular video of recursion, we will discuss how recursion can be used in different questions, in different particular problems, where the problems are also solvable by other technique, let's say iteration or any other technique. But we will see how recursion can be used in that problem to solve that particular problems in a good way. That is what we will discuss in this particular video. Okay. Now, let's see the first problem which we are going to discuss. The first problem which we are going to discuss is nothing but palindrome, or we can say palindrome string. So basically, we will be given with a string, let's say S, and we have to check that whether this S is a palindrome or not. We have to check whether this S is a palindrome string or not. What is a palindrome string? I hope everyone knows about the palindrome string. Palindrome string is that which, when reversed, is equal to the original string. Let's take the example of madam. If you will reverse this madam, it will remain madam only. Or if we will think in a different way, it can be said that if we will iterate from the back of the string and the front of the string, if characters are same, that means it is a palindrome string. You can see here it is M, M, A, D. Means it is a palindrome string. Let's take coding. Coding is not a palindrome string because the characters are not same. If any one of the pair is not same, that means string is not palindrome. That is a very basic example of palindrome string. A very basic example. Now let's discuss how we can solve this particular problem. First, we will discuss the iterative approach for it, or we can say other approach, how we can find whether the string is palindrome or not. And after that, we will go towards the recursive approach of it. So, let's take a problem in lead code. Problem is valid palindrome. Here in this problem, the thing is that we are given with a string where all uppercase character into, we have to convert all the uppercase characters into lowercase character and remove all non-alphabetic characters. So this is what we have to do. But let's take a very basic program. Okay, let's take a very basic program. Or if you will take this particular case also, if you will take this particular case and can we solve it in JavaScript? Yeah, we can solve it in JavaScript. Okay. So it is saying that we have to take only the string. Means we have to remove all the non-alphabetic characters and we have to convert all the uppercase character to lowercase. And after checking this, we have to check that whether the given string is palindrome or not. So first let's check about that how we can check that in
So first of all, let's see how we can check that whether if a character is alphabet or not. Okay, so you can see here. This is a function which is used to check that whether a particular given character is alphabet or not. This is the thing which is used to it. Or we can do it like this also. Convert it to lowercase, and if a lowercase is not equal to the uppercase, that means it is an alphabet. So we can use this function to check that whether the given character is an alphabet or not. So we can use this here. Let me again explain you about this function, what it is written. So this function is basically, this particular isLetter function is basically used to check that whether the given character which is given to us is a letter or not. What is mean by letter? Letter means because as we know that we have different other characters also. Let's say the string given to us is like this. Then a space is, let's say, this is the case. And also we can have some uppercase characters too. This is the string, let's say, given to us. This is the S given to us. So what it is saying, वो हमसे बोल रहा है इस स्ट्रिंग के आप जो भी अल्फाबेट के अलावा जो भी चीजें हैं उनको आप वहां से हटा दो। अल्फाबेट के अलावा जो भी चीजें हैं उस स्ट्रिंग में उसको आप वहां से हटा दो। देखो अल्फाबेट के अलावा एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये, इसको हमने ऐसा हटा दिया, बची हुई स्ट्रिंग हमारी ये आ गई। अब वो बोल रहा है, अब देखो इसने एक तो बोला था कि सारे नॉन अल्फाबेटिक को हटा दो, ठीक है, रिमूव ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक, बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, रिमूव ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर ये लोग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ये लोग न्यूमेरिक को ना ले रहे हो, आई होप। अभी तो कुछ आंसर नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक वन ऐड कर देते हैं, लेट्स से ये लोग उसको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी। ओके, सो वैसे तो इसको ट्रू आ रहा है, बट लेट्स से हम लोग यहाँ पर टू कर देते हैं। ये मैं सिर्फ इतना चेक कर रहा हूँ क्या ये लोग किसी एक नंबर को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फॉल्स आ रहा है, मतलब ये लोग एक नंबर को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं, ये लोग नंबर को भी यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो चेक कर सकते हैं इस अल्फा न्यूमेरिक जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन जो चेक करे कि क्या कोई एक कैरेक्टर जो में दिया गया है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये रिजेक्ट पैटर्न दिया गया है। रिजेक्ट पैटर्न रिजेक्ट पैटर्न हम लोग यूज करते हैं एक स्ट्रिंग का पैटर्न चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने को क्या दिया है, इन्होंने इस तरीके से एक ये रिजेक्ट पैटर्न बनाया, ठीक है। तो इस रिजेक्ट पैटर्न ये चेक कर लेगा कि क्या जो हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहा है, हम लोग सिर्फ एक एक कैरेक्टर करके उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर दूंगा, ये हमारा जो है इस अल्फा न्यूमेरिक क्या करेगा कि हम लोग एक स्ट्रिंग देंगे उसको, वो चेक कर लेगा कि जो वो स्ट्रिंग हमने दी है उसको वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। ये रिजेक्ट पैटर्न है। तो ये रिजेक्ट पैटर्न क्या बेसिकली बता रहा है हमें कि क्या सारे कैरेक्टर्स ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक हैं कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ देखो यहाँ पे बताई जा रही है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर जो है लोअर केस में लिए गए हैं, हम लोग भी सारे कैरेक्टर को लोअर केस में ही लेंगे, ठीक? हम लोग सारे कैरेक्टर को यहाँ पर टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा टू लोअर केस का फंक्शन होता है, हम लोग इससे हर कैरेक्टर को टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं कि हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है उसको हम लोग पहले सारे कैरेक्टर्स को टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ साथ एक चीज और भी चेक करते हैं कि कोई भी कि सारे कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक हो। अगर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे तभी हम लोग हमारे स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने लोगों पहले तो हमने यहाँ से हटा दिया सारा, और फिर हमने सारे को स्मॉल में भी कर दिया है, और लास्ट में अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमें दी गई है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं।
ये चीज़ हम लोग बिल्कुल लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम करते हैं, एक लेट न्यू str करके ले लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, कुछ नहीं है उस स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट l इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। तो ये हमें लेंथ दे देगा हमारा, जो कुछ भी इसका लेंथ होगा हमारे स्ट्रिंग का। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली आइट्रेट करेंगे i इज इक्वल टू 0 से लेके l तक i प्लस प्लस, हम लोग नॉर्मली आइट्रेट करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला करेक्टर लेंगे, लेट सी एच इज इक्वल टू, जो भी हमारा पहला करेक्टर है एस आई ले लें। हमने एस आई ले लिया, उस एस आई को हमें लोअर केस में भी कन्वर्ट करना, टू लोअर केस हमने अभी ले लिया। आपको पता है कि हम लोग टू लोअर केस जो होता है जावास्क्रिप्ट का, ये होता है, हम लोग ने इसको यहाँ यूज कर लिया, टू लोअर केस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सी एच को चेक करेंगे क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेंगे, इफ इज अल्फा न्यूमेरिक, अगर ये सी एच जो है ये अल्फा न्यूमेरिक है, तभी हम लोग इस सी एच को इस एस टी आर में डालेंगे। ठीक है, तभी हम लोग इस सी एच को एस टी आर में डालेंगे। एक काम करते हैं, इस सी एच को रिटर्न करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, या इसको प्रिंट कर लेते हैं। आई होप यहाँ पर लॉग यूज हो रहा होगा प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि console डॉट लॉग करके चेक कर लेंगे कि इस न्यू एस टी आर में क्या आ रहा है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, न्यू एस टी आर में आ क्या रहा है, हम लोग ये चेक करेंगे। तो देखो हमारे न्यू एस टी आर में ये आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप लोग देखोगे हमारे इस वाले टेस्ट केस को, यहाँ पे अगर हम लोग वन कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग वन कर दें, इसको अगर हम लोग रन करें, तो हमारे इस वाले जो स्ट्रिंग थे उसमें हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग ये चाहते थे कि बीच के सारे स्पेस हट जाएं, सारे स्पेस हट गए हैं। हम चाहते थे कि बीच के सारे कॉमा वगैरह सब हट जाएं, हट गए हैं, और सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे लोअर केस में हो जाएं। सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में हो चुके हैं। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो तो कंप्लीट हो, कि हमने जो हमारी हमारी जो स्ट्रिंग दे रखी थी उसको हमने एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया जहां पर हमारे पास एक भी नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, और सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में। इतना काम हमारा हो चुका है। तो अभी तक हमने से एक वैलिड स्ट्रिंग बना लिया है जो हमें चेक करनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी, हमें चेक करना होगा कि एक ऐसी स्ट्रिंग जो वैलिड तो है, या जो हमने बनाई है अभी स्ट्रिंग, वो वैलिड वैलिड पैलिंड्रोम हो, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम भी हो। हम लोग नेक्स्ट इस चीज के लिए चेक करेंगे, एक स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम भी हो। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो, वो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग अभी समझते हैं कि हम लोग बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि रिवर्स अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि हाउ कैन वी रिवर्स अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम लोग उसे चेक करें कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम तो रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो हमारे पास ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। आप पहले उसको स्प्लिट कर लो, फिर रिवर्स कर दो। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास तरीके होते हैं एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली कोई भी एक मेथड ले सकते हैं, हम लोग कोई भी एक मेथड ले सकते हैं और उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमने ये वाला रिवर्स स्ट्रिंग का मेथड यहाँ से ले लिया। अब ये रिवर्स स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग को उसको रिवर्स कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, इसमें हमारे पास मैडम दिया हुआ था, हमने क्या किया, हमने मैडम को पीछे से लिया, पहले एम लिया, फिर ये वाला ए लिया, फिर ये डी लिया। अब जैसे मैडम देखो रिवर्स करने में सेम आ जाएगा, कुछ और जैसे कोडिंग है, तो कोडिंग में पहले जी ले लिया, फिर एन ले लिया, फिर आई ले लिया, फिर डी ओ सी, ऐसे रिवर्स हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, देखो पीछे से चल रहे हैं और आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं और नई स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब भाई, अब मैंने क्या कहा था, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो होती है कि अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद उसमें कोई चेंज ना है, मतलब इफ हमारी जो न्यू एस टी आर है वो अगर अपनी रिवर्स की हुई स्ट्रिंग क्या होगी, जब हम इस फंक्शन से पास करेंगे जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी उसके इक्वल है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज क्या कर दो, रिटर्न कर दो
ये है। अगर हम लोग इसको अभी रन करेंगे कोड को, आई होप ये चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने चेक कर दिया। देखो पहले हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने हमारी जो स्ट्रिंग है उससे हमने नॉन अल्फा न्यूमेरिक और को हटा दिया था और सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर दिया था। दूसरा काम हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, दूसरा काम हमने ये किया है कि हमने उस स्ट्रिंग को रिवर्स करा के चेक कर लिया कि क्या वो स्ट्रिंग उसकी रिवर्स स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। देखो चल गया, ठीक है, ये आपका रन कर गया है। पर अगर आप अभी देखोगे तो हमने यहाँ पे कहीं भी रिकर्जन का यूज नहीं किया है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग ये रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन हटा देंगे। हम लोग इस रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन की जगह रिकर्जन के हेल्प से फाइंड करेंगे कि एक स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे रिकर्जन। तो हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हाउ वी कैन यूज रिकर्जन टू फाइंड दैट वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगेन रिकर्जन की हेल्प से भी हम लोग काम वही करना है कि हम लोग रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके बाद चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो चीजें समझेंगे। एक चीज तो पहले समझेंगे कि हम लोग एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और उसको समझने वाली समझेंगे कि हम लोग उस रिवर्स के मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि हम लोग रिकर्जन की हेल्प से एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। आया क्या आया, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्जन, ये चीज हम लोग करेंगे। अभी आप देखो, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ली थी, और उस फॉर लूप में मैंने क्या किया था कि जो हमारा लेट आई था वो स्ट्रिंग लेंथ -1 से लेके 0 तक गया था। आई माइनस माइनस मतलब पीछे से आगे तक गया था, हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। अब हमें यहाँ पे रिवर्स करना है यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है, कोई दूसरी रन के लिए लेते हैं, लेट से स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। हमें ये स्ट्रिंग दे रखी है, हमको इसको रिवर्स करना है। मान लो ये स्ट्रिंग है एस, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस स्ट्रिंग का पहला पार्ट लेंगे, तो लिख लेंगे, उसके पीछे हम लोग सेम फंक्शन कॉल कर लेंगे, पहला पार्ट हटा के। देखो मैं क्या बोल, समझना ठीक है इस बात को, थोड़ा डिफिकल्ट है पर समझना। मान लो हमने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन है वो फंक्शन है रिवर्स, उसमें हम लोग ये एस पास करेंगे ए स्ट्रिंग को। अब देखो पहले बेस कंडीशन लिखते हैं। जब हम लोग कोई रिकर्जन लिखते दो कंडीशन होती है, एक होती है बेस, एक होती है रिकर्जन कंडीशन। तो पहले बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन क्या होगी कि मान लो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ सिर्फ एक बची, सिर्फ एक एक कैरेक्टर बचा इसकी लेंथ इस स्ट्रिंग में। मतलब इफ एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1, तो आप नॉर्मली एस को रिटर्न कर दो। ये तो हो गया आपका बेस केस, आपको कोई भी रिकर्जन कॉल नहीं मारनी है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप क्या रिटर्न करोगे, आप पहले तो उसका पहला कैरेक्टर लो, S0, ठीक है। और क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें पहले एस मिला, उसके पीछे हमें पी लगाना है, उसके पीछे में आर और आई और एन और जी लगाना है ताकि रिवर्स हो जाए। तो उसके पीछे हम लोग बची हुई स्ट्रिंग के लिए फिर से फंक्शन, बची हुई स्ट्रिंग के लिए क्या, हम लोग स्प्लाइस यूज करेंगे। स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस क्या करता है कि अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्प्लाइस 1, तो वो आगे से एक कैरेक्टर हटा देगा, आगे से एक कैरेक्टर हटा देगा वो। इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रिंग को यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल करेंगे। अगर हम लोग उसका वो लिखें, कॉल स्टैक लिखें, ठीक है, देखते हैं कॉल स्टैक क्या आएगा। तो मान लो ये हमारा कॉल स्टैक है, ठीक। अब इस कॉल स्टैक में सबसे पहले क्या आया, मान लो हमने यहाँ पे एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग भेजी, तो स्ट्रिंग आया, बेस केस फॉल्स हो गया क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 1 नहीं है। तो क्या करेगा, एस ऑफ 0 ले लेगा, एस ऑफ 0 है एस, उसमें प्लस करेगा रिवर्स ऑफ क्या, एक हटा के, एक स्प्लाइस करके, एस हटा के बाकी स्ट्रिंग, तब ट्रिंग। अब सेम ये रिवर्स ऑफ ट्रिंग फिर से चलेगा। रिवर्स ऑफ ट्रिंग क्या करेगा कि वो टी हटाएगा उसके आगे का, और रिवर्स ऑफ रिंग बचेगा। अब रिवर्स ऑफ रिंग क्या करेगा, आर हटाएगा और उसके आगे का इंग बचेगा, आई हटाएगा, एन जी बचेगा, एन हटाएगा, जी बचेगा, और फिर जी, जब जी बचेगा लास्ट में, तो वो सीधा सीधा जी रिटर्न कर देगा, क्योंकि जब एक लेंथ बचेगी, देखो
तो सीधा सीधा उसको रिटर्न कर। तो यहाँ से जी आया, तो जी एन में ऐड हो जाएगा, ये जी एन में ऐड हो गया। फिर आगे से समझ रहे हो, तो जी एन बन गया, तो ये बन गया जी एन। अब ये जी एन आई में ऐड हुआ तो जी एन आई बन गया। अब वो जी एन आई में आर ऐड हुआ तो आर बन गया, उसमें टी ऐड हुआ टी बन गया, एस ऐड हुआ एस बन गया। तुम्हारी स्ट्रिंग जो रिवर्स हो, इस तरीके से आप देखो हम लोग हमारे एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिवर्स करने का देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक केस बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं फंक्शन रिवर्स, जो इसमें एक एस लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे इसको रिवर्स करेंगे। पहला आएगा बेस केस। बेस केस क्या है कि इफ एस डॉट लेंथ जो है अगर वो 1 है, तो सीधे सीधे भाई एस को भाई अगर एस 1 है एक ही कैरेक्टर स्ट्रिंग में, तो क्या रिवर्स करना, कुछ नहीं रिवर्स करना, सीधे सीधे उसको रिटर्न कर दो। कुछ है ही नहीं रिवर्स करने को, कुछ है ही नहीं रिवर्स करने को। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस। अब आगे आते हैं। अब आगे क्या है, रिकर्जन केस। रिकर्सिव केस क्या बनेगा यहाँ का। ठीक है, तो देखो रिकर्सिव मैंने क्या बोला था कि पहले तो उसका लास्ट कैरेक्टर लेंगे ना, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, जो लास्ट कैरेक्टर होगा, मतलब पहला कैरेक्टर, सॉरी पहला कैरेक्टर होगा, और उस पहले कैरेक्टर को पीछे से ऐड करना है। भाई यही तो देखो, पहला कैरेक्टर पीछे आया है, उसको पीछे से ऐड करना है। उसके पहले क्या ऐड करना है, उसके पहले उस सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा पर बची हुई स्ट्रिंग, पहला कैरेक्टर हटा दी। जैसे कोई यहाँ कॉल हो रहा था, वह एस ऐड किया था, रिकर्जन ऑफ स्ट्रिंग कॉल हो रहा था, फिर रिंग इंग, पहला हटा देंगे। पहला कैसे हटाते हैं, बहुत ही ईजी तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में करने का, बाकी लैंग्वेज में तो नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में होता है एस डॉट स्प्लाइस कर दे, एस डॉट स्प्लाइस वन, तो पहले की एक जो स्ट्रिंग हट जाएगी। अब अगर आप देखोगे, अगर अगर हम लोग फिर से सेम चीज करें, अगर हम लोग यहाँ चेक करें जो न्यू स्ट्रिंग हमने बनाई है, क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैंने क्या किया था अभी, मैंने कहा था कि उस स्ट्रिंग को उसके रिवर्स से चेक कर लो, कि अगर वो स्ट्रिंग उसके रिवर्स के इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, तो चेक कर लो। इफ ये स्ट्रिंग जो है इसके रिवर्स के इक्वल है कि नहीं, इसका रिवर्स मतलब आर ई वी ऑफ इट, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, भाई वो पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, फिर से रन कर लो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अ, अच्छा सॉरी, मैंने स्प्लाइस यूज कर लिया एक्चुअली में, जो फंक्शन तो स्लाइस होता है, मैंने स्प्लाइस यहाँ भी लिखा है क्या। हाँ मैं सॉरी यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। इट इज स्लाइस ना, इट्स स्लाइस नॉट स्लाइस। देखो ये रन कर गया। ठीक है, अगर सबमिट करेंगे इसको तो ये भी सबमिट हो जाएगा, ये भी सबमिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें एक दिक्कत आ रही है कि जब हमारी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो, इस स्ट्रिंग के लिए भी आंसर ये होना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ कर देते हैं कि इफ एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, तो सीधे सीधे रिटर्न कर दो ट्रू। अगर भाई एस की लेंथ या मतलब न्यू एस की लेंथ, अगर न्यू एस की लेंथ जीरो है तो सीधे सीधे ट्रू। भाई अगर अगर स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, उसके लेंथ अगर जीरो है तो सीधा सीधा जो है ट्रू रिटर्न कर दो। ये आता देखो, रन हो गया, रन हो गया। इस तरीके से आपका ये रिकर्सिव केस चल गया है यहाँ पर। मैं एक एक चीज भूल गया था भाई, अगर अगर मान लो आपकी स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, स्ट्रिंग देखो जैसे यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग में कुछ था ही नहीं, खाली थी। अब जब इसका हम लोग निकालते फाइनल स्ट्रिंग तो वो खाली निकलती, तो भाई उसका भी तो आंसर जीरो होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स करना सीख लिया। अब हमने क्या अभी सीखा है, हमने अभी सीखा है हाउ वी कैन रिवर्स a string using recursion। और अभी भी आप देखोगे कि पैलिंड्रोम को चेक करना तो रिकर्जन से नहीं किया ना हमने भी, अभी भी हम लोग रिवर्स करके चेक कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स रिवर्स नहीं करेंगे, हम लोग इस स्ट्रिंग को रिकर्जन की हेल्प से ही चेक करेंगे सीधा सीधा बिना रिवर्स किए कि क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है और एक तरीके से फाइनल स्टेप भी है हमारे हमारे आज के इसका इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हें आपने देखा होगा हमने इस प्रॉब्लम के अंदर ही काफी चीजें सीख ली, हमने इस प्रॉब्लम के अंदर ही काफी चीजें सीख ली। तो आज का ज्यादा नहीं रखना है आपका, इसमें इतना ही इन्वॉल्व करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इतना काम हो रहा है। हमने इसमें काफी कैसे हम लोग पहले तो हमारे एक जो हमें स्ट्रिंग दे रखी है उसको हम लोग पहले सारे को लोअर केस में कर रहे हैं। ठीक है, लोअर केस में करने के बाद हम लोग पहले उसको चेक कर रहे हैं क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ये भी चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तब उसको हम लोग एक नई स्ट्रिंग में डालेंगे न्यू str में, है ना। और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं इफ न्यू str डॉट लेंथ इज, और वी कैन से इफ लेंथ इज लेस देन 2, अगर भाई न्यू str की लेंथ लेस देन 2 है तो हम लोग सीधे सीधे ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर भी किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हो जिसकी लेंथ 2 से कम हो, मतलब 2 से कम मतलब या तो 0 या तो 1 हो, 2 से कम, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो पैलिंड्रोम होगी ही होगी, उस स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम होगी, में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दैट स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी अ पैलिंड्रोम, वो हमेशा एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। ठीक है, पर अगर वो नहीं है, अगर वो 2 से बड़ी या 2 के इक्वल है उसके लिए, तब देखो हम लोग क्या करें। भाई मान लेते हैं, देखो फिर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लो मैडम ही ले लेते हैं, मान लो स्ट्रिंग मैडम ही ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग हमारे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को उसके लास्ट कैरेक्टर से चेक कर रहे हैं, अगर वो इक्वल है तो आगे बढ़ रहे हैं। तो और थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी और बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट्स से कि स्ट्रिंग ये है, ये देखो ये भी हमारी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले कैरेक्टर को उसके लास्ट कैरेक्टर से चेक कर लेंगे, अगर वो इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ, मतलब उनको हटा दो, एक तरीके से उनको हटा दो, भाई इक्वल है हटा दो, या इस तरीके से काट दो, हटाओ ना, इस तरीके से नॉर्मली जो है उसको यहाँ से कट कर दो। अगला देखो, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, इनको भी कट कर दो, इनको भी कट कर दो। ठीक, अगला देखो, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इनको भी कट कर दो, इनको भी कट कर दो। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इनको भी कट कर दो। आखिरी में एक बचा, तो भाई एक बचा है मतलब वो पैलिंड्रोम है, एक बचा है तो 20 का हुआ। एक मैंने क्या बोला था, अगर एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो या जीरो एक भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग ना बचे मतलब पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है। ठीक, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैलिंड्रोम का एक अलग से फंक्शन जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। इस पैल कर देते हैं क्योंकि इस पैलिंड्रोम पहले से एक फंक्शन है हमारे पास। तो डायरेक्टली फंक्शन लिख लेते हैं, कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, एरो फंक्शन टाइप है। एरो नहीं मतलब बेसिकली उन्होंने उस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करा लिया इस पैलिंड्रोम में, नो वरीज। हम लोग नॉर्मली एक फंक्शन लेंगे इस पैल, जिसमें हम लोग एस को पास करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये दो कंडीशन तो हमारे पास हो ही जाएंगे कि अगर हमारा एस जो है उसकी लेंथ 0 है या 1 है, मतलब बेसिकली 2 से कम है, तो आंसर मेरा हमेशा ट्रू आएगा, आंसर हमारा हमेशा ट्रू आएगा। ये बेसिकली हमारा क्या है, बेस केस। ठीक है, ये हमारा बेस केस। अब आते हैं रिकर्सिव केस भी आएंगे, और उसके पहले हमें और चीज हमें चेक करना पड़ेगा, एक चेक भी तो लगेगा। चेक कैसा रहेगा भाई, एक चेक नहीं लगेगा कि हमारी जो पहली कैरेक्टर है और आखिरी कैरेक्टर सेम है, अगर सेम नहीं है तो हमें फिर फॉल्स रिटर्न रिटर्न कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न नहीं कर देंगे। एक चेक ये भी लगेगा ना कि हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो लास्ट कैरेक्टर के इक्वल हो। अब देखो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग लिखूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, जो पहला कैरेक्टर होगा वो लास्ट कैरेक्टर इक्वल हो। लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, उसकी इंडेक्स निकाल के, और लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स होती है वो होती है लेंथ -1, जो लेंथ है स्ट्रिंग की -1 वो होती है। इसके लिए मैं पहले तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी पड़ेगी, दैट से लेंथ है एल, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। यहाँ पे एस लिख दो यार, न्यू स्ट्रिंग तो वहाँ पे था, ऐसा यहाँ पर, ठीक है।
ये निकाल ली। अब देखो लेंथ ऑब्वियसली 2 या 2 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 है या 1 से छोटी है, मतलब बेसिकली 2 से छोटी है, तो लोग यहीं पर रिटर्न कर दे रहे हैं ना ट्रू को। वो तो बेस केस है, तो हमेशा वो 2 या 2 से बड़ी होगी, या फिर 1 से बड़ी कह लो, या 2 या 2 से बड़ी कह लो, कुछ भी ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अगर अगर देखो, फिर अब अगला बेस केस आया जो कि रॉन्ग वाला है, मतलब जहां पे हम रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेंगे। वो ये होगा कि अगर हमारी पहली स्ट्रिंग, पहला कैरेक्टर, मतलब मान लो ये स्ट्रिंग अगर एस है, तो पहला कैरेक्टर हुआ एस ऑफ जीरो, अगर वो नॉट इक्वल टू है लास्ट कैरेक्टर के, यहाँ पे वो है 8, वैसे तो वो होगा एल माइनस वन, मतलब लेंथ -1, यहाँ पे लेंथ 9 है, तो 8 हो गया। अगर हमारा पहला कैरेक्टर इफ, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इफ आर फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर लास्ट कैरेक्टर, भाई पहला अगर लास्ट के इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ पर इस ए की जगह बी होता, तो ये इक्वल ना होते, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना होते, तो हम लोग यहाँ से नॉर्मली रिटर्न कर देंगे क्या? फॉल्स रिटर्न। ये तो आ गया फॉल्स का केस। पर अब क्या है? अब केस क्या है कि हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो 2 या 2 से बड़ी भी है। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 या 2 से बड़ी है, और हमारे जो कैरेक्टर है पहला आखिरी, वो हमारा इक्वल भी है। तो भाई हमने आपसे बोला कि हमारा पहला था और आखिरी कैरेक्टर था, बाकी से हटा दो यहाँ से। वो कह रहा है कि जो आपका पहला और आखिरी कैरेक्टर वो आपका इक्वल है, ये कैरेक्टर जो है इससे इक्वल है। अब आप क्या करोगे? अब आप अगली स्ट्रिंग निकालोगे ना कि भाई अगली स्ट्रिंग क्या बची। तो अब क्या करोगे? मान लो आपने बोला कि भाई इसको हटा दो यहाँ से, दोनों कैरेक्टर यहाँ से हटा दो, क्योंकि अब हमें अगले दो कैरेक्टर से चेक करना है, अब इन दोनों में चेक करना है ये इक्वल है कि नहीं है। पर हम लोग वो अगल बगल कैरेक्टर हटाएंगे कैसे? कि आगे से एक कैरेक्टर हट गया, पीछे से एक कैरेक्टर हट गया, कैसे? अगेन स्लाइस फंक्शन है। तो जब हम लोग स्लाइस वन लिखते हैं, तो वो आगे का एक कैरेक्टर हटाता है। अगर हम स्लाइस -1 लिखते हैं, तो वो पीछे से एक कैरेक्टर हटाता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें स्लाइस ऑफ 1 कॉमा माइनस, तो वो आगे से एक हटाएगा, पीछे से एक हटाएगा। एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, हम लोग वीएस कोड में समझते हैं इसको। जैसे जावास्क्रिप्ट को हम लोग वीएस कोड में रन करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायल लिख के यहाँ पे कर लूँ, तो लेट्स से अगर हम लोग इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट एस इज इक्वल टू कोडिंग, हमने लिख दिया एस डॉट स्लाइस स्लाइस 1 कॉमा माइनस, तो क्या करेगा? वो पहले का एक कैरेक्टर आखिरी का एक कैरेक्टर हटा देगा। अगर मैं उसको, अब सॉरी, हटा नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी एक थोड़ा सा वो हो गया, एक थोड़ी सी, हाँ मतलब वो हटा देगा, बट बेसिकली किसी और तरीके से हटाएगा, मैं बताता हूँ। ये तो हो जाएगा अगर मैं उसको यहाँ प्रिंट करूंगा ना। देखो क्या हुआ है, इसने, अगर हम लोग इस चीज को प्रिंट करें, तो ये क्या कर रहा है देख लो। ये आगे का देखो, आगे क्या था? सी था, सी हट गया, और पीछे जी हट गया, क्या बचा? ओ डी आई एन बचा। तो स्लाइस क्या करता है? एक तरीके से सब स्ट्रिंग का काम करता है। सब स्ट्रिंग क्या करता है कि आपको एक से लेकर दूसरे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग निकालता है। तो स्लाइस क्या कर रहा है? स्लाइस बोल रहा है भाई कि पहले इंडेक्स से, मतलब इस इंडेक्स से, और लास्ट सेकंड इंडेक्स तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि पहला कैरेक्टर हटा दिया, आखिरी कैरेक्टर हटा दिया। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ -1 रखता, तो क्या करता? वो वो यहाँ पर हमें सिर्फ जी दे देता, मतलब सिर्फ -1 में उसके आगे की चीज देगा। अगर मैं यहाँ से 1 रखता, तो वो सी हटा देता, वो OIDNG दे देता। एक बार देखो, ODING दे दिया उसने, सी हटा दिया, क्योंकि वो 1 और उसके आगे की चीजें दे रहा है। अगर हमने यहाँ पे 1 कॉमा -1 लिख दिया, मतलब वो 1 से लेके -1 तक की चीजें देगा। 1 यहाँ पे है और -1 जी के पहले तक। अब अगर प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा कि, हो गया, हाँ देखो ODIN दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है? वो ODIN दे रहा है, मतलब उसने पहले का कैरेक्टर हटा दिया और आखिरी का भी एक कैरेक्टर उसने हटा दिया है। इस तरीके से हम लोग स्लाइस फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेम स्लाइस फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में। अब हम लोग क्या करें? हम लोग इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, इस पैलेंड्रोम को, बट इस बार जो फंक्शन होगा वो इस तरीके से, एस को हम लोग एस स्लाइस कर देंगे 1 कॉमा माइनस।
अब देखो इसी जगह हम लोग यहाँ पे इसको -2 कर देते हैं तो पीछे से 2 हट जाते, सिर्फ ODI बचता, सिर्फ ODI बचा। अगर हम लोग आगे से 2 कर देते तो आगे से भी 2 हट जाते, CO हट गया और NG हट गया, सिर्फ DI बचेगा। रन करके देख लो, सिर्फ DI बचा। इस तरीके से आई होप अब आप लोग स्लाइस फंक्शन यूज करना सीख गए होंगे, क्योंकि स्लाइस फंक्शन का यूज यहाँ पे काफी जगह हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, अब देखो ये फंक्शन क्या था, ये इस पैलिंड्रोम फंक्शन क्या है, ये हमारा चेक कर रहा है ये जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अब सिंपली हम लोग इस फंक्शन को हम लोग इस पैलिंड्रोम फंक्शन को हम लोग यहाँ पर इस पर्ल फंक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे हमारी न्यू str के लिए, जो हमने न्यू str बनाई है, और इसको हम लोग रन कर देंगे, कोड को रन कर देंगे। देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, जो ट्रू हमें चाहिए वही यहाँ पर आ रहा है। एक बार सारे सैंपल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पूरा सही हो गया, अब आ रहा है, सबमिट कर लो। तो हमने अभी तक 2 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, 2 तरीके से। अभी तीसरा तरीका आया, इससे भी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर आप देखोगे तो इस तीसरे तरीके का अगर आप कंपैरिजन करो बाकी दोनों तरीकों से, ये फास्ट है फास्ट। मेमोरी थोड़ी ज़्यादा लगी है इस वाले से, क्योंकि ये वाला आइटरेटिव था। इस वाले में क्या हो रहा है कि हम लोग कॉल स्टैक, भाई रिकर्जन है तो कॉल स्टैक आएगा, कॉल स्टैक में थोड़ी बहुत मेमोरी तो लगती है, तो रिकर्जन में थोड़ी सी मेमोरी एक्स्ट्रा लगती है, पर फास्ट होता है, देखो फास्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हम लोगों ने 3 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, और इस प्रॉब्लम के अंदर हमने कई अलग चीजें सीखी, क्या कैसे चेक करें कि एक करेक्टर इज न्यूमेरिक है कि नहीं है, कैसे चेक करें कि एक करेक्टर को लोअर बाउंड में ले जाए, कैसे एक स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं रिकर्जन की हेल्प से, हमने ये भी देखा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग कैसे रिकर्जन की हेल्प से एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो काफी तरीके हो सकते हैं एक स्ट्रिंग को चेक करने की कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, किस तरीके से वो वर्क कर रही है। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। आई होप कि इसमें आपको रिकर्जन में और बाकी ऑपरेशंस में काफी सीखने को मिला होगा। थैंक यू।